Welcome to the BioNexus Health Podcast with Dr. Jodie A. Darshaw, who holds a PhD in Integrative Medicine, is board certified in Integrative Pediatrics, an internationally recognized pioneering clinician, and author. And now here's your host of BioNexus Health Podcast, Dr. Jodie A. Darshaw. Hey everyone, welcome back to the BioNexus Health Podcast series, Autism Uprooted. Today we are going to be doing a little bit, something a little bit different. So we have the wonderful Benazir from Pakistan, and she has very kindly agreed to translate into her native language, that is Urdu, and it'll be helpful to so many people watching who do speak that language, and I know that there are many who understand that language. It might be additionally educational to understand the nuances of autism. Once you get the label autism, why not to just feeling depressed, getting depressed, just thinking that you have a child with autism, that is a life sentence. It's a life sentence not just for the child, but sometimes for the whole family, and it is a really sad and depressing situation. I mean, I can speak for myself as an autism mom myself, of a fully recovered child, as many of you know. Benazir's son is on his way to recovery. He is 90% there, so that's why we have Benny here today. So Benny, hi again. Hi. Thanks for having me here. Yes, I'm so glad. So I think that is a wonderful idea that, I'll just give you the floor and you can speak about your discovery that autism can often be complicated with so many other underlying medical issues. And, when there is a non-verbal child who is not able to express, it is difficult to understand the pain, the discomfort, the neuropathy, the muscle weakness, the paralysis. Like my son's leg was paralyzed, and so many other symptoms, the hyperactivity, the head banging that many children exhibit, which is just, labeled as these are all symptoms of autism, and whereas there could be underlying medical issues, which the best scientific way is to run some labs, lots of labs. We ran lots of labs. So if you can just talk in your native language about that, about the BioNexus protocol, all herbals, and then what your journey has been overall, briefly, I think that would be very helpful to many. जी बिल्कुल, मैं अब उर्दू में जैसे डॉक्टर जोडी ने कहा है वैसे ही बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे इस फोरम पे बात करने का मौका देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पहले भी सुना है, पर्सनली भी सुना है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल हमजा अभी 2 साल का भी नहीं था जब हमें कंसर्न रेज हो गया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, और उस वक्त सिम्टम सिर्फ ये थे कि ये जिस डे केयर में जाता था वहाँ टॉयज को लाइन अप कर रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 ब्लॉक्स लेके लाइन अप करता था, यानी ये इतना ऑब्वियस भी नहीं था, बट एज अ पेरेंट मैंने इसको पिक किया कि नो ही इज डूइंग इट। और दूसरा सिम्टम ये था कि ये 1.5 साल का हो चुका था, लेकिन ये प्रॉपर्ली मामा पापा भी कहने में इंटरेस्टेड नहीं था और खामोशी रहता था, इसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही थी, जबकि इसकी जो बड़ी बहन है उसकी तो लैंग्वेज 1 साल से पहले ही कुछ न कुछ 1 साल से पहले कह रही हूँ, 1.5 साल के बाद बहुत अच्छी सी आना शुरू हो गई थी। तो एक फैमिली में यूजुअली एक ही ट्रेंड फॉलो होता है, तो मुझे नजर आ रहा था कि उसने क्या किया और इसने क्या किया, शायद इसलिए भी मैंने इन चीज़ों को पिक किया। बहुत सारे फर्स्ट टाइम पेरेंट्स भी चीज़ों को पिक नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता और डिनाइल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जब बच्चे की नीड है और वो बोल भी नहीं सकता, तो काइंडली ऐसे इश्यूज को पिक किया करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज्यादती है बच्चे के साथ। आप उसकी बाकी तो किसी नीड को नहीं छोड़ते, तो एक चीज़ वो आपको खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो वो आपने खुद ही पिक करनी है, आप खुद ही उसकी आवाज़ें आप कैसे पिक नहीं करेंगे।
तो हमजा अभी 1.5 साल से ऊपर ही गया था, अभी 1.25 साल का था। तो हमने इसके फौरी तौर पे सारे टेस्ट, जो पैरा टेस्ट को कहते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा होगा शायद इसलिए नहीं बोल रहा, और वो सारे काम हमने किए, इसके टेस्ट वगैरह किए, वहां से सब कुछ क्लियर हो गया। और हम इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में, हमारे यहाँ थेरेपीज होती हैं, वहां ले गए इसको फौरी तौर पे। तो वहां पे उन्होंने इसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस दे दिया था, जबकि मैंने आपको बता दिया कि ये खाली चीजों को हल्का सा लाइन अप करता था, नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी। और इसके डे केयर में अगर कभी कोई एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी या सर्कल टाइम होता था, तो ये उसमें नहीं बैठता था। ये अपने शेडो के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता था, शेडो जितनी देर के लिए डे केयर में आता था। और ये अभी बस बोला नहीं था, और अभी ये 2 साल का ही था। तो इसके साथ ही जब हम प्रॉपर जगह पे गए तो इसको डायग्नोसिस मिला, ठीक है। और हम बिल्कुल भी डिनाइल में नहीं गए, हमने तभी थोड़ी थेरेपीज वगैरह की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज जो मैं अब यहाँ पे कहूंगी कि इनिशियली पेरेंट्स को नहीं आइडिया होता, इसको एक मेडिकल कंडीशन भी लें, कोई ना कोई वजह, चाहे फूड सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, के साथ ये चीजें स्टार्ट होती हैं और टाइम के साथ ये चीजें वर्स्ट ही हो रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फूड सेंसिटिविटीज डेवलप हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी खाने पीने की चीजों को महदूद करने लगा था। वो बात का जवाब उस तरह नहीं देता था, कंफ्यूज होता था। मैं अगर टेबल पे पड़ा टिश्यू भी उससे मंगवा लूं तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, जैसे मैंने उसको समझाना है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये वो कंसर्न्स थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये कंसर्निंग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल की उम्र में अगर आप स्कूल भेजना चाहते हैं और वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोला अभी तक, तो ये कंसर्न नहीं है, और वो सोशलाइज नहीं कर रहा। और यकीन जाने ये चीजें घर बैठे नहीं पता चलती। जब आप सोशल सेटअप में बच्चों को लेके जाते हैं, या तो वो वहां रोना शुरू कर देते हैं, या वो अवॉइड करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। ये चीजें लोग भी आपको इखलाकन बता नहीं रहे होते हैं कि आपका बच्चा मुझे अवॉइड कर रहा है या कुछ है, लेकिन ये आपने एज अ पेरेंट खुद देखना है कि वो बच्चा दूसरों में मिक्स नहीं हो रहा, वो बात नहीं करना चाहता। और ये डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। इसको लाइट मत लें, इसको शाइनेस या कुछ और मत समझें करें। मैंने इन चीजों को पढ़ना शुरू किया, ऑटिज्म रिलेटेड रिसर्च इंटरनेट पे भी बहुत मौजूद है, मैंने उसको भी देखना शुरू किया ऑथेंटिक सोर्सेज से। अगेन, ये मुझे पता है कि हम हर जगह से या हर पेरेंट के मुंह से नहीं सुन सकते, और ये मुझे पता चलना शुरू हुआ कि हर बच्चे की सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं। आपने किसी को देख के ये नहीं समझना कि मेरे बच्चे में ये नहीं है तो वो तो बिल्कुल ठीक है। आपने अपने बच्चे को स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब मैंने इन चीजों को स्टडी किया, और ये तो मेरे सामने ही था कि हमजा की मसल टोन नहीं थी, वो कोई बहुत हैप्पी बेबी नहीं था, वो आइसोलेटेड रहता था, वो बहुत खामोश रहता था, बोल सकता भी नहीं था, लेकिन कोशिश भी कोई नहीं करता था। और वो इस तरह की चीजें जब मैंने देखी, और उसको बुखार वगैरह नहीं होता था, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि अगर उसे फीवर नहीं होता, और मैं समझती थी कि वो हेल्दी है। तो बज़ाहिर जब मैंने उसको ग्लूटेन फ्री किया और ये सारी चीजें, तो उससे मुझे हमजा के अंदर चेंज नजर आना शुरू हुआ, जिससे मुझे एक बिलीफ मिला कि ये चीजें असर करती हैं। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। जब मैंने हमजा को एब्सोल्युटली ग्लूटेन फ्री और केसीन फ्री किया, तो हमजा में मैंने चेंज देखा। फिर लकीली खैर बहुत ज्यादा टाइम गुजरा, और जिसमें मैंने एक दफा इसका अपनी तरफ से पैरासाइट प्रोटोकॉल किया, जिसमें मैंने एक हर्ब यूज की थी, जिसे ब्लैक वॉलनट कहते हैं। जब मैंने वो यूज की तो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल था। जब मैंने वो यूज किया तो मैंने हमजा में फर्स्ट टाइम देखा कि उसने पॉइंट किया एक खास दफा। मैं उससे बात कर रही थी तो हमजा ने मुझे आने के लिए खास तरफ पॉइंट किया कि वहां से होके आओ। तो मैं बहुत हैरान हुई कि इतना बड़ा चेंज इसमें इस प्रोटोकॉल से कैसे आया। और उस दफा मैंने एक हर्ब यूज की थी, ब्लैक वॉलनट। तो समहाउ मेरा बिलीव अल्लाह मियां की नेचुरल चीजों पे तो था ही था। मेरा बिलीव था कि अल्लाह मियां ने यहीं कहीं एनवायरनमेंट में शिफा भी रखी होगी। और जब ये यूज किया और हमजा में एकदम से चेंज आया और उसने आई कांटेक्ट मुझे देना शुरू कर दिया, तो मुझे उससे शक पड़ा कि इसने काम किया है। ये वर्चुअल हुई, उस पे मैंने फौरी तौर पे सर्च किया। उन दिनों मैं मोल्ड को बहुत ज्यादा सर्च कर रही थी कि मोल्ड की कोई रीजन ना हो। और जब मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे डॉक्टर जोडी का पता चला, और मुझे पता चला कि वो मोल्ड इंड्यूस्ड ऑटिज्म के ऊपर बात कर रही हैं। और मैंने बहुत ज्यादा शुक्र किया उस वक्त कि मुझे एटलीस्ट क्लू मिल गया कि ये ऐसा है, जो मैं सोच रही हूँ उसके पीछे कुछ है। ये मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था। बहरहाल फिर मैंने फौरी तौर पे इनसे अपॉइंटमेंट ली, हम इनके पास आए
और उस वक्त हमजा तकरीबन 6-6.5 साल का था, और जो सिम्टम्स इनसे मैंने डिस्कस किए उस वक्त तो सिर्फ उन्हीं का मुझे पता था। और मुझे याद है कि डॉक्टर जोडी ने हमें यही कहा कि इसको पैंडास है। उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि उन्होंने मुझे क्या कहा है, लाइम डिजीज का कहा, मोल्ड इंड्यूस्ड ऑटिज्म का भी कहा। फिर हमने इनके साथ लैब्स की, लैब्स में कुछ ब्लड वर्क भी था, इम्यूनिटी को भी देखा, और उसके जो भी मार्कर्स थे इम्यूनिटी के, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट या जो भी, वो सारा चेक किया। फिर हमारे कुछ इंटरनेशनल टेस्ट भी थे, वो भी हमने रन किए, लैब टेस्ट थे, उनके थ्रू भी फिर हमारे सामने क्लियर पिक्चर की तरह आ गया कि इसको क्या क्या इश्यूज हैं। इसकी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पा रही थी, बहुत सारे इन्फेक्शंस का सामना था, ये सारी चीजें उनमें सामने आई। ऐसा नहीं है कि ये आप हवा में तीर की तरह चलाते हैं, इसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि जो सिम्टम्स आपने डॉक्टर से डिस्कस किए हैं, फिर वो उस हिसाब से आपको लैब्स बताते हैं, और जब आप लैब्स रन करते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाती है। जब हमने इनके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो 7 साल की उम्र में मेरे पास प्रोटोकॉल, जाहिर है यूएस से मैंने इंपोर्ट किया, तो वो मुझे मिल गया। और जब हमने हमजा के साथ यूज करना शुरू किया तो हमजा ने पहले 1 महीने में ही, मुझे याद है कि डॉक्टर जोडी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी और मैंने इनको कुछ लैब्स ही दिखानी थी, और उसके साथ मैंने इनको बताया कि डॉक्टर जोडी इसने मुझे मामा कहा है। तो वो एकदम हैरान हुई और मैं खुद हैरान थी कि ये वाकई ये इसके साथ हो रहा है कि मैंने 1.5 महीना अभी यूज की है मेडिसिन और इसमें इतना चेंज आ रहा है। फिर मैंने इनको ये भी बताया कि इस दौरान इसी 1 महीने के बाद जब मैं प्रोटोकॉल यूज कर रही थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एक नॉर्दर्न एरिया में घूमने फिरने गई, तो मुझे अपनी फ्रेंड्स ने भी कहा, क्योंकि जाहिर है इसको डे केयर में देखती थी, उन्होंने भी कहा कि हमजा हमें बड़ा मीनिंगफुली देख रहा है, अब हमारी तरफ ये देख रहा है, हमें टॉलरेट कर रहा है कि हम इसको देख रहे हैं या हम इसके पास बैठे हैं। तो जब दूसरों ने भी कहा तो मैंने कहा कि ओके, इट्स नॉट ओनली माय फीलिंग, वो भी यही चीज महसूस कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुई, मेरे लिए डेफिनेटली ये बहुत क्या कहते हैं, सेटिस्फाइंग था। और इसके ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कहते हैं, मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई कि जो मैं देख रही हूँ वो वाकई सही है। हमजा अपने मसल्स का बेहतर इस्तेमाल शुरू हो गया। हमजा पहले साइकिलिंग नहीं कर सकता था। हमजा को हमने घर में एक साइकिल दी हुई थी, वो एक ही रूम में एक जगह से बैठ के दूसरी जगह तक चला के उठ जाता था, उससे नहीं चलाई जाती थी। लेकिन जब मई में मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को वीडियोस दिखाती कि वो स्ट्रीट में अपनी बड़ी वाली साइकिल चला रहा था और खूब बार बार चला रहा था, जिससे ये पता चलता है कि आप उसके अंदर स्टेमिना था। और ये चीज उसके साथ मैंने कोई एक्सरसाइजेस या कुछ और नहीं किया था, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल। तो मैं बहुत इस मामले में खुश हूँ कि मैंने देखा कि जब आप प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स टाइम। डेफिनेटली ये चीज जहन में रखें कि हमेशा अप नहीं होता। अब ये जो मैं प्रोग्रेस गिनवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे कोई लो डेज नहीं थे, आते थे। कभी कभी कोई सेंसिटिविटी बढ़ जाती थी, खासतौर पर जब हमने पैरासाइट प्रोटोकॉल स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि हमजा को कभी भी आवाजों के साथ सेंसरी इशू नहीं था, लेकिन वो उस दौरान 5-6 महीने के लिए पाया, लेकिन फिर वो चला गया। ठीक है, तो समटाइम्स सेंसिटिविटीज डेवलप हो जाती हैं, आती जाती रहती हैं चीजें, या कोई स्लीपिंग इश्यूज या कुछ इस तरह ऊपर अप डाउन चलता है, लेकिन ओवरऑल ग्राफ को ऊपर ही जाना चाहिए और वो जा रहा था। आप यकीन जाने में बहुत ज्यादा एसी भी यूज नहीं करती थी, एयर कंडीशनर्स यूज नहीं करती थी, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होता है। ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ती हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें बुरा इफेक्ट रख रही हैं, तो उन चीजों को आप अवॉइड करते हैं। मैंने बहुत मिनिमम पे रखा इन चीजों को। एयर फिल्टर भी यूज किया ताकि एनवायरनमेंट में जो मोल्ड होता है या अदर बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, आप उनको भी लो पे रखें, बच्चे को हील करने का मौका दें। मैं इन चीजों से डरा नहीं रही हूँ, ये चीजें अच्छा इफेक्ट लाती हैं, आपकी बाकी फैमिली भी हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आती है। आप लर्न करते हैं कि आप कितनी गलती की तरफ जा रहे थे। और मैं तो इसको एक इस तरह से भी ब्लेसिंग देखती हूँ कि आने वाले दौर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियां ने मुझे ये सेंस दे दी है। मेरी बेटी भी है, अब मुझे पता है कि मैंने ये गलतियां उसके साथ रिपीट नहीं करनी। उसने भी कल को माँ बनना है, उसने भी कल को घर देखना है। तो जब भी अल्लाह मियां ने चाहा, हमें ये सिखा दिया इस बच्चे के थ्रू
तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी सेंस के साथ कि हम गलत चीज़ों की तरफ मत जाएं, गलत लाइफस्टाइल्स में ना पड़ें। अब हम कोई प्रोसेस्ड फूड, कोई बाहर की चीज़, प्रोसेस्ड मीट, स्लांटी, लेज वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करते बाहर से। हमजा हमेशा से घर की डाइट यूज़ करता है, और घर की डाइट भी सिर्फ घर की होने की वजह से हेल्दी नहीं होती। आपने हेल्दी ऑयल्स यूज़ करने हैं, आपने रॉ वेजिटेबल्स और वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। अपने घर से केमिकल के इस्तेमाल खत्म करने होते हैं। ये मॉस्किटो स्प्रेज, परफ्यूम्स, जो कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, सब आपकी लाइफ से निकल जाता है। आप एक बड़ी हेल्दी और सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं, एंड यू डोंट रिग्रेट। और मैं ये आपको बहुत अच्छी तरह कहूँगी, जब आप अपने बच्चे को भी हील करता हुआ देखते हैं और जब आप खुद भी बेहतर हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें एट द एंड आपको बहुत खुशी देती हैं। तो इस चीज में कोई वो क्या कहते हैं ना, बर्डन फील ना करें कि ये हम तो बदल जाएंगे, हम दुनिया से कट जाएंगे। आप दुनिया से जुड़ जाएंगे। जब आपका बच्चा ठीक होगा तो आप सोशली लोगों में उठ बैठ सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। तो ये चीज आपको हेल्प ही करेगी। किसी अच्छे डॉक्टर से जुड़ें। जैसे अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। हम लोग 2020 से डॉक्टर जोड़ी के साथ हैं। अब तो हम मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब हमारा मेन ट्रीटमेंट हो चुका है और अब हम उसकी एक खास हद तक जो है उसको मॉनिटर करेंगे जब वो पूरा सेफ टाइम में होगा। और हम एक मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पे हैं जो कि बहुत जो एक्चुअल ट्रीटमेंट था उसके मुकाबले में बहुत रिड्यूस्ड और छोटा सा प्रोटोकॉल होता है जो कि उस बच्चे को मेंटेन करने में हेल्प करता है अनटिल एट अबाउट प्यूबर्टी, जब वो प्रॉपर्ली जैसे जवान होना या वो कहते हैं। लेकिन ये कि जब वो बच्चा 14 साल से 16 साल 17 साल के बीच में जब वो प्रॉपर्ली जवान होता है, उस टाइम पे उसको मौका मिलता है कि अगर उसकी बॉडी को आपने हेल्दी रखा है इस पूरे ड्यूरेशन में, तो वो खुद ब खुद अपने आप को उठा लेती है बॉडी अगेन। ये एक सेकंड चांस होता है इंसान की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, कि वो अपने आप को ठीक कर लेगा। तो हम वहां तक उसके ऊपर मेहनत करते हैं। और क्योंकि ये रिवॉर्डिंग है, जब आपका बच्चा हील कर रहा होता है तो आप खुशी खुशी है सब कुछ करते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि आपको इसकी आदत भी हो जाती है टाइम के साथ, और आप ये सीख भी लेते हैं और आपको आदत भी हो जाती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल्स की तरफ आए, हील करें अपने बच्चों को और खुश रहें। You know, I understood the English parts, and then I guess I was able to connect with what you were trying to convey, and that was wonderful. I think I really appreciated when you said healthy lifestyle. And you also mentioned your daughter and a generational effect of this. That's what it is. I keep telling this to Brian as well. I'm like, Brian's like, oh my gosh, I have to do this and the maintenance, because he's still doing maintenance, right? He's for the last 10-15 years he's been on a maintenance protocol, and he likes it. He knows, he's not repeatedly falling sick, one good fever and then he's all done. And then I explained to him, when you're in your 60s, 50s, and you have 0 prescription medicines, mom and dad will not be there. Who knows? Maybe we will, right? But, even if we are not there, then you will be healthy. You'll be healthy for the rest of your life. Yes, that is important. Although Hamza, was sick initially, definitely that's why we came here. But it's amazing that he can heal himself without antibiotics or anything. Correct. And in a couple of days, mostly. Correct. And this is amazing. Yeah. It's very well said. And, we will pause on that very positive note. And I hope that everyone watching appreciates all the information that we have tried to share with you here today. So thank you for watching, and as always, keep smiling, and I'll see you on the next episode of the BioNexus Health Podcast series, Autism Uprooted. Thank you so much, Benazir, again. Thank you. Thank you for joining Master Herbalist Dr. Jodi A. Dashaw, Director of the BioNexus Health Clinic and BioNexus Herbals, on the BioNexus Health Podcast,
where we explore and share information and stories about recovering and healing from chronic and environmental illnesses such as mold biotoxin illness, Lyme disease, autism spectrum disorder, fatigue, Crohn's and colitis, mast cell activation syndrome, PANS, and more. Please help us grow our message by subscribing to our podcast channel and sharing the podcast on your social networks. For more information, visit bionexushealth.com.